जो तो प्रेम खेलन का चाओ, सिर तार तली खली मेरी आओ। इत मार्ग पैर धरीजै, सिर दीजै कान ना कीजै। डंडौत बंदन अनक बार, सर्ब कला समरथ। डोलन ते राखो प्रभु, नानक दे कर हथ। डोलन ते राखो प्रभु, नानक दे कर हथ। परम सत्कारयोग छतर चवर तख्त दे मालिक, रहमतां दे मुजस्मे, वालिए कुल आलम, शब्द गुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दी पावन मुकद्दस गोद विच सुभाईमान सत संगी जनों, वडभागे हाँ जो संध्या दे दीवाना दी हाज़री भरदियां होया रब्बी इलाही बाणी दा हर जस कीर्तन सरवण कर रहे सां। हुण आओ गुरमत विचारां दे नाल जुड़न दा यतन करिए। शहीदी दिहाड़े नूं समर्पित पिछलेरे दिनां तो आपां विचारां करदे आ रहे हां। उस लड़ी दी तहत आपां विचार करनी है। विचार आरंभण तो पहला आओ गुरुदेव दे चरनां च हाज़री लवाइए। आखो वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। शहीदी दिहाड़े नूं समर्पित आपां पिछले दिनां तो विचारां करते आ रहे हाँ। कल आपां विचार की समाप्ति इत्थे कीती सी। गुरु गोबिंद सिंह सच्चा पातशाह अपने दो वड्डे फरजादां दे नाल 40 सिखां दे नाल 21 दसंबर चमकौर दी कच्ची गढ़ी दे विच रात बतीत करते हैं। 22 दसंबर अमृत वेला होया है। सतगुरु जी ने अमृत वेले का दीवान सजाया। दीवान की समाप्ति हुई। सतगुरु जी नूं सिख ने आके कहा, सतगुरु बाहर बहुत भारी मलखैया भारी गिनती दे विच आके सानू घेर लिया है। बहुत ज्यादा फौज बाहर आई हुई है। सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह पातशाह जी जिन्हें कांगड़ की धरती ते जो उन्होंने जफरनामा लिखिया, उहदे विच सतगुरु जी ने 3-4 शेर इस संबंधी दर्ज किए हैं। सतगुरु जी औरंगजेब नूं जित की चिट्ठी लिख के भेजते हैं, जफरनामा। सतगुरु जी कहते हैं, औरंगजेब मैं लाचार हो गया, मैं लड़ना नहीं सी चाहता,
ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਸੋਵਾ ਖਾ ਕੇ ਮੁੱਕਰ ਗਏ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਲਾਚਾਰ ਹੋ ਕੇ ਕਿਰਪਾਨ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਇਆ ਤੇ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਲੜਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉੱਥੇ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ੇਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਗੁਰ ਸਨੇਹ ਕੇ ਕਾਰੇ ਕੋ ਨਿਧ ਜਹਲ ਨਰ, ਕਿ 10 ਲੱਖ ਬਰਾਇਤ ਬਰੋ ਬੇਖਬਰ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ 40 ਭੁੱਖੇ ਭਾਣੇ ਸਿੱਖ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ 10 ਲੱਖ ਦੀ ਫੌਜ ਨੇ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਾਇਆ। 10 ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਭੁੱਖੇ ਭਾਣੇ 40 ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪੈਮਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਰੀ ਫੌਜ ਕਸਮਾਂ ਤੋੜ ਕੇ ਬੰਦੂਕਾਂ ਨੇਜੇ ਤਲਵਾਰਾਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹਨ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪੈਮਾ ਸ਼ਿਕਣ ਬੇਦ ਰੰਗ ਆਮਦੰਦ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਦੂਕਾਂ ਨੇਜੇ ਤਲਵਾਰਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਲਾਚਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਾ ਲਾਚਾਰ ਗੀ ਦਰ ਸਿਆ ਆਮਦੰਦ, ਬਾ ਤਤਬੀਰ ਤੀਰ ਤੇਗੋ ਤੁਫੰਗ ਆਮਦੰਦ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਲਾਚਾਰ ਹੋ ਕੇ ਮੈਂ ਵੀ ਤਲਵੀਰ ਤੀਰਾਂ ਨੂੰ ਤਲਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੇਜਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਹੀਲੇ ਵਸੀਲੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਦੋਂ ਸਿੱਖ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਭੁਲਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕਿਰਪਾਨ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾ ਲਵੇ, ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾ ਲਵੇ। ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਹੀਲੇ ਵਸੀਲੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਉਦੋਂ ਸ਼ਮਸ਼ੀਰ ਨੂੰ ਮਿਆਨ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਉਤਰ ਆਵੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਚੌਥਾ ਸ਼ੇਰ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਉਚਾਰਿਆ, ਚੂਕਾਰ ਅੱਜ ਹਮਾ ਹੀਲ ਤੇ ਦਰ ਗੁਜਸਤ, ਹਲਾਲ ਅਸਤ ਬਰਦਮ ਬਾ ਸ਼ਮਸ਼ੀਰ ਦਸਤ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ, ਮੈਂ ਲਾਚਾਰ ਹੋ ਕੇ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਉਤਰਿਆ ਹਾਂ, ਉਦਾਂ ਮੈਂ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸਾਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਖਬਰ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਬਾਹਰ 10 ਲੱਖ ਦਾ ਮਲਖਈਆ ਆਇਆ ਹੈ, ਪਹਾੜੀ ਰਾਜੇ ਆਏ ਹਨ, ਸਰਹੰਦ ਦਾ ਨਵਾਬ ਆਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਮਲੇਰ ਕੋਟਲੇ ਵਾਲੇ ਵੀ ਆਏ ਹਨ, ਖਾਨ ਆਏ ਹਨ, ਸ਼ੇਰ ਮੁਹੰਮਦ ਖਾਨ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤਾਜੀ ਫੌਜ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਾਣਿਆਂ ਨੇ ਘੇਰਾ ਪਾਇਆ, ਅੰਦਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਖਬਰ ਪੁੱਜੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਏਲਚੀ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜੇ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰ ਦੇਣ, ਤਾਂ ਜੋ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਖੂਨ ਖਰਾਬਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਇਰਾਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਏਲਚੀ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਭੇਜਿਆ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਹਥਿਆਰ ਸੁੱਟ ਕੇ ਬਾਹਾਂ ਖੜੀਆਂ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਵੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਮਾਫ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਨ ਵੀ ਬਖਸ਼ੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਵਾਧੂ ਘਾਟੂ ਬਚਨ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ। ਜਦੋਂ ਵਾਧੂ ਘਾਟੂ ਬਚਨ ਉਹਨੇ ਕਹੇ ਤੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਿਆਨ ਵਿੱਚੋਂ ਤਲਵਾਰ ਕੱਢ ਕੇ ਲਲਕਾਰ ਕੇ ਆਖਿਆ, ਓਏ ਏਲਚੀ ਮਸੰਜਰ, ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਏਲਚੀ ਸੁਨੇਹਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਵਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੈਨੂੰ ਛੱਡ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਵਰਨਾ ਜੇ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਟੱਕਰ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾਨ ਦਾ ਤੇਰਾ ਸੀਸ ਅੱਡ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਵਾਂਗਾ। ਉਹ ਏਲਚੀ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਤੇ ਇਧਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਪੰਜਾਂ ਦੇ ਜਥੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਕਈ 8 ਦੇ ਵੀ ਜਥੇ ਲਿਖਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਉਧਰ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਮਲਖਈਏ ਨੇ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਲਿਖਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਮਲੇਰ ਕੋਟਲੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੰਗਾਰ ਪਾਈ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਖਾਲਸੇ ਦਰਬਾਰੇ ਬੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ, ਸਰਕਾਰੀ ਦਰਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪੂਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਬੜੇ ਬਹਾਦਰ ਗਿਣੇ ਜਾਂਦੇ ਜੇ, ਉੱਠੋ ਤੁਹਾਡੇ ਜੋ ਕੋਈ ਸੂਰਮਾ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਲਿਆਵੇ ਜਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਸਿਰ ਵੱਢ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਫਿਰ ਮਲੇਰ ਕੋਟਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਹਰ ਖਾਨ ਆਇਆ ਹੈ। ਨਾਹਰ ਖਾਨ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਜਥੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੜੀ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਪੌੜੀ ਲਾ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੇਖਣ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ।
क्योंकि पौड़ी ला के जाण दा मकसद दो सन। पहला मकसद ये सी कि अंदर गिनती दा पता लग जावे, इन्हां दी ताकत दा पता लग जावे, ते दूसरा जे मौका मिल गया ते गड़ी दा बूहा खोल दवांगे तां जो सारी बाहर दी फौज इक्के वारी हमला करके गुरु नूं ते ओहदे सिखां नूं मार देवेगी जां फड़ लवेगी। इस मकसद दे नाल नार खां आया है। उन्हें पौड़ी लाई ते गुरु गोबिंद सिंह पातशाह कहंदे झोदी दम के नाहर बियामद बा जंग, कहंदे नार खां आया, उन्हें गड़ी नूं पौड़ी लाई ते गुरु गोबिंद सिंह पातशाह कहंदे मैं अपनी तंदी दे तीर नूं चाड़िया ते जदों उन्हें दवार तो अपने सिर नूं तां कीता है, जे सदे तते तके तीर तन बेद रंग। सतगुरु जी कहंदे मैं एक तीर चलाया ते उस नार खान दे तन दे विच मारिया, ओ तीर नूं खा के घुमदा होया धरती ते डिग पिया ते डिगदे सार ओदी जिहड़ी मौत हो गई। दूसरा तेरा जरनैल आया, ओदा नाम सी गणी खां, ओ भी बड़ा अपने आप नूं बहादुर गिणदा सी कि मैं एक गुरु गोबिंद सिंह नूं फड़ के लियावांगा। सतगुरु जी कहंदे जदों ओने पौड़ी ला के अंदर आउण दा यतन कीता ते सतगुरु जी कहंदे मैं ओनूं गुरज मारिया ते गुरज मार के ओदा सिर पाड़ के रख दिता, ओ भी जिहड़ा धरती ते डिगदियां सार मर गया। सतगुरु कहंदे फिर तीसरा जरनैल तेरे वल्लों आया है जिहदा नाम ख्वाजा महदूद है, पर सतगुरु जी ने जबरनामे विच ओदा नाम लिखिया है मरदूद। मरदूद तो भार की कायर जिहड़ा बहादुरां दीयां तरह नाल लड़दा ना होवे, सिर्फ गल्लां दे नाल अपने आप नूं जरनैल गिणदा होवे। सतगुरु जी कहंदे ए तेरा ख्वाजा महदूद आया। जदों आया ए ललकारदा होया आया कि किड्डी क गल है, ये थोड़े जे सिखां नूं ते मेरे जथे नहीं फड़ लेना है, हुणे मैं गोबिंद सिंह दा सिर वट के लियावांगा। ते सतगुरु कहंदे जदों जथे नूं लेके गड़ी वल वधिया ते जदों वेखिया अपने भरा दी लाश नूं, वेखिया गणी खां दी लाश नूं, पौड़ी ते चढ़िया ते जरूर पर इहदी हिम्मत ना पई कि कंध दे उत्तों अपना सिर करके ओ वेख सके। सतगुरु जी कहंदे ए डरदा होया इन्हें सिर ना तां कीता ते मर्द जिहड़ा अपने आप नूं गिणदा सी, ये जिहड़ा मर्द बन के जिहड़ा दवार दे ओले हो के अपनी जान बचा के चला गया। सतगुरु जी ने उत्थे लिखिया किया ख्वाजा महदूद शाह दी वार मैदा नियामत बा मर्दाने वार, आया मर्दा वांगू से पर लड़िया मर्दा वांगू नहीं, अपनी जान बचा के भज गया। ते सतगुरु जी कहंदे दरोगा, दरोगा तो भाव कि मैनू एक अफसोस है। सतगुरु जी कहंदे औरंगजेब मैनू चमकौर दी गड़ी विच बस इक्को गल दा अफसोस है, ते ओ अफसोस ये नहीं कि सतगुरु जी दा परिवार उजड़ गया है, ये अफसोस ओ नहीं कि सतगुरु दा आनंदपुर साहिब उजड़ गया है, ये अफसोस ओ नहीं कि सतगुरु जी दे सिख अते दो साहिबजादे शहीद होए हन, ये अफसोस नहीं। अफसोस सतगुरु कहंदे मैनू ये है कि जेड़ा तेरा ख्वाजा महदूद मैनू मारन वास्ते आया सी, किते ओ अपनी धौण कंध दे उत्तों दी कर लैंदा तां मैं एक तीर ओनू भी बख्श देना। बस इसे गल दा मैनू अफसोस है कि वो मेरे हथों अपनी जान बचा के चला गया, किते मेरे अखां दे अगे आ जांदा ते जिवें ओदे भरा नूं तवी तीर दा मैं स्वाद चखाया है, ओनू भी एक तीर दा मैं स्वाद चखा के ओनू भी मार दिंदा। दरोगा अगर रुए ओए दीद में बेअक तीर ला चर बख्शी दमे। सतगुरु जी कहंदे एक तीर मैं ओनू भी बख्श देना सी। इधर सतगुरु जी अपने सिखां दे जथे बनाउंदे हन, उधर पूरा मलखैया इक्के वारी हमला करन दी सोचदा है। ते पंजां प्यारियां दे विचों ए भाई हिम्मत सिंह जी सतगुरु जी दे अगे आए हाथ जोड़ के बेनती करदे हन ते 22 दसंबर दी ए ओ अदुੱਤੀ जंग है जेदी मिसाल दुनिया दे विच मिलदी ही नहीं है। एक बन्ने 10 लाख ते एक बन्ने जिहड़े भुखे पाने 40 सिख हन ते गुरु गोबिंद सिंह पातशाह जिहड़े बचन 1.25 लाख से एक लड़ाओ तबे गोबिंद सिंह नाम कहाऊं, ओ बचन भी सतगुरु जी ने इत्थे चमकौर दी गड़ी विच पूरे कीते हन। सतगुरु जी दे कोल भाई हिम्मत सिंह आए हन, कह लगा सतगुरु
पूरा मलखैया ने सलाह बनाई इक्के वारी तुहाडे ते हमला कर दे, पर साडे हुंदिया कोई दुश्मन तुहाडे तक पहुंच जावे, इस गढ़ी तक पहुंच जावे, ये गल चंगी नहीं है। तुसी आग्ञा बख्शो तो मैं इस जेड़े आ रहे मुलखैये नूं रस्ते विच रोक दवां। सतगुरु जी कहंदे भाई हिम्मत सिंह तू ते अपना सिर उस दिन भेंट कर दिता सी जिस दिन मैं श्री अकाल तख्त साहिब ते श्री केसगढ़ साहिब ते पंजां सिरां दी मंग कीती सी ते तू अपना सिर मेरे अगे भेंट कर दिता सी। तू ते मैनू उस दिन ही अपना सिर भेंट कर दिता सी। सतगुरु जी ने भाई हिम्मत सिंह नू आग्ञा बख्शी है। अपना जथा लेके भाई हिम्मत सिंह गढ़ी तो बाहर गया है ते जदों बाहर गया दुश्मन दे नाल भाई हिम्मत सिंह बड़ी दलेरी दे नाल हिम्मत दे नाल जूझिया है ते जो लड़दिया होया कईयां नूं पता लगा कि ये प्यारियां विचों हिम्मत सिंह है ते उच्ची सारी आवाज दे के कह लगे कि इहनूं छड्डिओ ना। जेड़े पंज प्यारे गुरु ने साजे हन उन्हां पंजां प्यारियां विचों हिम्मत आया है ते इस हिम्मत सिंह नूं छड्डिओ ना, इहनूं मार दिता जावे। ते भाई हिम्मत सिंह दुश्मन दा मुकाबला करदे हन, कईयां नूं मारदे हन, कईयां सट्टां नूं अपने तन ते सहारदे हन। कई चिर किन्ना चिर लड़दियां नूं हो गया, अखीर पंजां सिंघां ने जेड़ा ओ शहादत दा जाम पी लिया। भाई हिम्मत सिंह लड़दियां होया शहादत दा जाम पी गए हन। सतगुरु जी ने दूसरा जथा बाहर भेजिया। दूजा जथा भी बड़ी हिम्मत दे नाल लड़िया है। दूजा जथा भी बड़ी दलेरी नाल दुश्मन दा जेड़ा उन्हें नुकसान कीता है। अखीर वो भी जथा जेड़ा शहीद हो गया है। तीसरा जथा सतगुरु जी ने भेजिया। तीन जथे जेड़े वो बाहर शहीद हो चुके हन ते भाई दया सिंह जी वो सतगुरु जी दे कोल खलो के सारा नजारा वेख रहे हन। सिखां नूं लड़दियां होयां नूं वेख रहे हन, दुश्मनां दे वारां नूं वेख रहे हन। ते जदों तीन जेड़े दोपहर ढल तो पहला तीन जथे शहीद हो गए ते भाई दया सिंह सतगुरु नूं बेनती करदे ने, सतगुरु किरपा करो, एक बाहर मुलखैया बहुत ज्यादा है, बड़ी भारी गिनती विच आए हन, तुसी अपने पुत्रां नूं नाल लेके जेड़ा गढ़ी दे विचों बाहर निकल जावो। असीं दुश्मन नूं रोक के रखांगे, दुश्मन नाल असीं जूझांगे, तुसी किसे ना किसे तरीके बाहर निकल जावो। ते इतिहासकार कहंदे सतगुरु ने अपना हाथ भाई दया सिंह दे कंधे ते रखिया है, मोढे ते हाथ रख के सतगुरु कहंदे दया सिंह किहड़े पुत्र दी गल करदा वां कि तुसी मेरे पुत्र नहीं, जे तू इन्हां अजीत ते जुझार पुत्र दी गल करदा वां, ए मेरे बिंदी पुत्र हन। तू मेरा खालसा पुत्र है ना, मैं अपने बिंदी पुत्रां नूं जेड़ा वा पासे करके वेखांगा ते ना खालसे नूं पासे करांगा, क्योंकि सिखां पुत्रां भाईयां प्यार इक्को जिहा। मेरे वास्ते सिख पुत्र भाई सारे बराबर हन, जिस करके मैं वितकरा नहीं करांगा। इस करके जेड़ा वा मैं तानू भी उन्ना प्यार करदा हां ते मैं अपने पुत्रां नूं भी उन्ना ही प्यार करदा वां। जदों ये वचन सतगुरु जी भाई दया सिंह नूं कह रहे हन ते साहिबजादा अजीत सिंह सतगुरु जी कोल आए हन। आके कह लगे सतगुरु पिता जी हुण रण मैदाने विच जूझण दा मौका आ गया है, किरपा करो मैनू आग्ञा बख्शो तां जो मैं मैदाने जंग दे विच जाके जुड़ सकां, दुश्मन नूं अपनी तलवार दा स्वाद चखा सकां। ते भाई दया सिंह कहंदे नहीं अजीत सिंह तुसी अजे बाहर नहीं जाना, तुसी जेड़ा वा इत्थे रहना है, असीं जूझांगे। ते सतगुरु जी कहंदे नहीं भाई दया सिंह मेरा पुत्र ही हुण जथा लेके जावेगा। ते सतगुरु अपने पुत्र नूं एक गल कहंदे हन, अजीत सिंह तेरा नाम मैं रखिया सी जदों भंगाणी दी पहली जंग जित्ती सी ते तू उदों जन्म लिया सी ते जितण तो बाद मैं तेरा नाम अजीत रखिया सी। मैदाने जंग विच जा जूझ, पर वेखी पिठ विखा के मेरी जड़ी पग नूं दाग ना ला दवी, पंथ नूं दाग ना ला दवी, पुरजा पुरजा करके कट जाई, पर जेड़ा वा पिठ विखा के दुश्मन नूं जेड़ा भज के ना आई। ते बाबा अजीत सिंह ने उत्थे बचन कहे हन ते उर्दू दे विद्वान ने लिखे हन। बाबा अजीत सिंह जी कहंदे पिता जी नाम का अजीत हूं,
जीता नहीं जाऊंगा, जीता गया अगर तो जीता नहीं आऊंगा। मैं नाम दा अजीत, मैनू कोई जित नहीं सकता। जे कोई जित गया तो मैं जिंदिया होया वापस नहीं आवांगा, उत्थे अपने प्राण त्याग देवांगा। सतगुरु जी ने अपने पुत्र नू तैयार किया है। बाबा साहब बाबा अजीत सिंह जी अपने जथे दे नाल तैयार होए हन ते सतगुरु जी ने आप गढ़ी दा दरवाजा खोलिया। अपने छोटे पुत्र ते भाई दया सिंह नू लेके फिर मौंटी ते चढ़ गए हन। ते जदों मौंटी ते गए, सतगुरु कहंदे भाई दया सिंह मेरा जिहड़ा वा भत्था तीरां दे नाल भर दे, क्योंकि मेरा पुत्र हुण लड़न वास्ते गया है। ते मैं अपने पुत्र नू अपने तीरां दे शाह हेठां जिहड़ा दुश्मन दे अगे खड़ना चाहुंदा वा, जिस करके तू मेरा भत्था जिहड़ा ओ तीरां नाल भर दे। इधर बाबा साहब बाबा अजीत सिंह जी ओ बाहर गए हन ते दुश्मन नाल जुड़दे हन। ते जुड़दियां होया कईयां दा जिहड़ा बाबा अजीत सिंह ने शिकार कीता है, कईयां दे आऊ लाए हन। ते इतिहासकार कहंदे हन सब तो पहला बाबा अजीत सिंह ने तीर चलाए हन। जदों भत्थे दे विचों तीर मुके, फिर नेजे दे नाल दुश्मन दे आहू लाए हन। ते जदों नेजे दे नाल कईयां नू मारिया, अखीर एक सिपाही दे तन दे उत्ते संजो पाया होया सी। जदों नेजा ओदे मारिया ते नेजा ओदे संजो नू पाड़दियां छाती विच खुभ गया, पर जदों बाहर कढ़िया कला डंडा हाथ च रह गया ते नेजा ओदी छाती विच रह गया। अखीर बाबा अजीत सिंह ने तलवार नू हथ पाया है। तलवार दे नाल कईयां दे आऊ लाए हन ते कई इतिहासकार इथों तक कहंदे हन कि बाबा अजीत सिंह जी नू 14-15 वारी जिहड़ा दुश्मन ने घेरिया है, ते 14-15 वारी दुश्मन दे जिहड़े चक्कर नू तोड़दियां होया बाबा अजीत सिंह दुश्मन दे अध तक गए हन। इतिहासकार कई लिखदे हन, क्योंकि गुरु गोबिंद सिंह पातशाह मौंटी तो सारा कुछ वेख रहे हन। ते जदों दुश्मन घेरदा सी, सतगुरु मौंटी तो तीर चला के अपने पुत्र नू अगे राह बना के दिंदे सन। सतगुरु जी दा लाल बाबा अजीत सिंह दुश्मन नाल लड़दा है। जदों वेखिया कि ए वड्डा फरजंद है ते वार दित्ती, ए गुरु गोबिंद सिंह दा वड्डा पुत्र जे जिंदा ना जावे, ते सतगुरु जी ने उत्तों आवाज दित्ती मैं जीण वास्ते नहीं भेजिया, मैं इनू शहीद होने वास्ते गड़ी विचों बाहर भेजिया है। बाबा अजीत सिंह दुश्मन नाल लड़दियां होया अखीर जिहड़ा ओ शहीद हो गए हन, क्योंकि तलवार भी खंडी हो गई, तीर भी सारे मुक चुके हन, नेजा भी टुट चुकिया है। ते अखीर दुश्मन ने रल के जिहड़ा भाई बाबा अजीत सिंह दे तन उत्ते वार कीते, इन्ने ज्यादा वार कीते कि शरीर जिहड़ा ओ छली छली हो गया है। विद्वान इस गल नूं मनदे हन कि अज तक जिहड़ा वड्डे तो वड्डा सूरमा भी है, ओदे शरीर दे उत्ते 50 तो लेके 70 तक फट लगे हन। इस तो वध जिहड़ा इतिहास विच किसी दे शरीर ते फट नहीं मिलदी, पर बाबा अजीत सिंह दे शरीर उत्ते 500 दे करीब जिहड़ा फट हन। कईयां ने 300 भी किया है ते कईयां ने 500 भी किया है। ते वो कारण भी दसदे हन। कारण ये दसदे हन क्योंकि जिहड़ा वजीर खान सरहद दा नवाब सी, उन्हें कहा होया सी कि जिहड़ा गुरु दे पुत्र नूं मारेगा उन्हूं इनाम दवांगा। इनाम लैण दे लालसा विच हरेक ने बाबा अजीत सिंह दे तन उत्ते जिहड़ा वार कीता है, जिस करके शरीर उत्ते विद्वान 500 दे करीब जिहड़ा वो फट मानदे हन। बाबा अजीत सिंह शहादत दा जाम पीता है ते गुरु गोबिंद सिंह पातशाह ने अपनियां अखां दे सामने लाल नूं शहीद हुंदे वेखिया ते जकारा छड्डिया है। ते जकारा छड्ड के एक बचन कहा, जिसकी बस्त तिस आगे राखै, प्रभ की आज्ञा मानै माथै, उसते चौगन करे निहाल, नानक साहिब सदा दयाल। सतगुरु जी कहते शाबाश पिसर, खूब दलेरी से लड़े हो, हाँ क्यों ना हो, गोबिंद के फरजंद बड़े हो, तू गोबिंद सिंह दा वड्डा पुत्र क्यों ना दलेरी दे नाल लड़दा। सतगुरु जी ने जकारे छड़ के मौंटी तो थले आ गए हन। भाई दया सिंह सतगुरु जी दे नाल खलोते हन ते भाई दया सिंह सोचदे हन कि हुण सतगुरु जी होर किसे जथे नूं तोरनगे, पर शामां दा समा आ रहा है, क्योंकि बाबा अजीत सिंह जी
ਉਹਨਾਂ ਦੁਪਹਿਰ ਢਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਜਾਮ ਪੀਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਇੰਨੇ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਦੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇੱਕ ਪਿੱਛੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ, पिता जी भाई से बिछड़ कर हमें जीना नहीं आता, सोना नहीं, खाना नहीं, पीना नहीं पाता। हाथ जोड़ के कहन लगा, छोटा साहिबजादा बाबा जुझार सिंह पिता जी ਅਸੀਂ ਦੋਵਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠਿਆਂ ਖੇਡੇ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਇਕੱਠਿਆਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇੱਕੇ ਮੰਜੇ ਤੇ ਸੁੱਤੇ ਹਾਂ, ਇਕੱਠਿਆਂ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਾਣੀ ਛਕਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਮੌਤ ਆਉਣ ਤੇ ਵਿਤਕਰਾ ਨਾ ਪੈਣ ਦਿਓ। ਮੇਰਾ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਤੁਰ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਜੂਝਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿਵੋ। ਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਅੱਲਾ ਜਾਰ ਖਾਂ ਜੋਗੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ कि जदों कश्मीरी पंडित आए सन तो मैं अपने पिता नु कहा सी कि जा दीजे धर्म पर, लो अब आपको कहते हैं जा दीजे धर्म पर। सतगुरु कहंदे मैं अपने पिता नु भी कहा कि धर्म वास्ते अपना आप कुर्बान करो, ते अज मैं तेनू भी निराश नहीं करांगा, तेनू भी इहो कहांगा कि धर्म वास्ते अपने आप नू कुर्बान कर दे। भाई दया सिंह जी लागे खलोते हन ते भाई दया सिंह कहंदे, जुझार सिंह तू अजे छोटा वा, क्योंकि 14 साल की लगभग उम्र है। बाबा अजीत सिंह जी दी 18 साल के करीब उम्र है। ते भाई दया सिंह कहंदे हन, बाबा जुझार जी तुसी अजे छोटे जे, तानू लड़ना नहीं आउंदा, तानू जेड़ा जूझना नहीं आउंदा। ते बाबा जुझार सिंह ने जवाब दिता, लड़ना नहीं आता मुझे, मरना तो आता है, सिर बढ़कर तेग पर धरना तो आता है। कहंदा मैं मनदा हां कि मैनू लड़ना नहीं आउंदा, निक्का हां, पर मैनू मरना जरूर आउंदा वा, अपना सिर तेग दे थल्ले रखना आउंदा, जिस करके मैं जरूर जावांगा। ते अल्लाह जार खां जोगी कहंदा, जदों बाबा जुझार सिंह ने ये बचन कहे ते गुरु गोबिंद सिंह जी बोले हन, बाराई सी आवाज से बोले गुरु गोबिंद, पाला है तुझे नाड़ से बोले गुरु गोबिंद, रोका नहीं आगाड़ से बोले गुरु गोबिंद, उस नन्हे से जा बार से बोले गुरु गोबिंद। की बोले? अल्लाह जार खां जोगी कहंदा, लो आओ तन पाक पे हथियार सजा दे। कहंदे पुत्र तेनू निराश नहीं करांगा, तेनू मैं तेरे वीर वांगू ही तोरांगा, तेनू मैं आप तैयार करना हां, तू मेरे कोल अपना तन लेके आ, तेरे तन दे उत्ते मैं तेरे हथियार सजा देवां। लो आओ तन पाक पे हथियार सजा दे, छोटी सी म्यान नन्ही सी कृपान सजा दे, तेनू मैं छोटी जी म्यान दवां ते नन्ही सी तेनू मैं कृपान दवां, ओदे नाल जाके तू दुश्मन दे आहू लाई। ते अल्लाह जार खां जोगी कहंदा है, जदों खंजर दिता, खंजर दे के सतगुरु जी कहंदे, इसे शमशीर समझना, नेजे की जगह दादा का तीर समझना, जितने इनसे मरे उन्हें बेपीर समझना, जख्म आए तो होना नहीं उन्हें दलगीर समझना। सतगुरु जी कहंदे आ जड़ा नेजा तेनू दिता वा, इनू जड़ा शमशीर समझी, जड़ा तेनू मैं आ खंजर दिता है, इनू जड़ा दादा दा तीर समझी, ते जिन्ने इहदे नाल मरनगे उन्हां नू बेपीर समझी कि गुरु वालों परमात्मा वालों वो बेमुख हन। ते जे तेनू जख्म आवे ते ओते जड़ा रोना नहीं, सगों ओनू जड़ा वा सहार लेना, ओनू दलगीर समझना, ओनू जड़ा प्रवान कर लेना। सतगुरु जी नाल बचन कहंदे हन, लो जाओ सदारो तुम्हें अल्लाह को सौंपा, मर जाओ जा मारो तुम्हें अल्लाह को सौंपा, रब को ना बसारो तुम्हें अल्लाह को सौंपा, सिक्खी को उबारो तुम्हें अल्लाह को सौंपा। वाहिगुरु अब तुम्हें जंग में लड़ने की हिम्मत बख्शे, प्यासे हो जाते जाम शहादत तुम्हें बख्शे। सतगुरु जी कहंदे मैं वाहिगुरु अगे अरदास करदा वां कि परमात्मा तेनू मैदाने जंग दे विच जूझण दी हिम्मत बख्शे अते नाल तेनू शहादत दा जाम पीण दी हिम्मत बख्शे। ते सतगुरु जी अपने छोटे पुत्र नू आप तैयार करदे हन ते तैयार करन तो बाद सतगुरु जी आप फिर गड़ी दा दरवाजा खोलदे हन ते आप सतगुरु मौंटी ते जाके अपने छोटे पुत्र नू जूझदियां होया फिर वेखदे हन ते छोटा साहिबजादा बाबा जुझार सिंह
ਕਿਵੇਂ ਫਿਰ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਜਾਮ ਪੀਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵਿਚਾਰ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਬੇਅੰਤ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਅਤੇ ਸੰਗਤ ਬਖਸ਼ਣਹਾਰ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।